वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे। जो हमारा यूनिट्स ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर उसी को आगे बढ़ाते हुए, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, और फिर अगर टाइम बचता है तो उसमें कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में भी कुछ बताएंगे। तो लेट अस बिगिन विथ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? देखो, वर्क डन बाय ए फोर्स, वर्क डन by a force W is equal to डेल्टा ऑफ K। तो डेल्टा ऑफ K का मतलब हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। So this you can write down K final minus K initial. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो एज यू नो, देखो हमेशा वर्क डन जो होता है फोर्स के द्वारा होता है। तो फोर्स जब भी लगेगा तो उसके वेलोसिटी में तो कोई ना कोई चेंज आएगा, और वेलोसिटी में अगर कोई चेंज आएगा तो नेचुरली काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा। तो जितना काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ, दैट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय द फोर्स। सो दिस इज व्हाट वी कॉल वर्क एनर्जी थ्योरम। अब दो सवाल है, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम सभी फोर्स के लिए लागू है? तो इसका जवाब होगा यस। इफ द फोर्स इज कांस्टेंट, then also work energy theorem is applicable. If force is variable, then also work energy theorem is applicable. तो कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हैं। क्लास 11 में हम एक डील कर देते हैं वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क एनर्जी थ्योरम। सो यू राइट डाउन वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए for variable force. Okay. Let for a small displacement, for a small displacement ds, for a small displacement ds, force F is supposed to be constant, is supposed to be constant. Okay. The small work done in for this displacement dW is equal to F into ds. And if you consider that the displacement takes place along the direction of force, then dW can be written as F into ds. Okay. We will change here F. Instead of F, you can write here mass into acceleration into ds. You can write, you can replace acceleration also. M for acceleration, you can write here dv by dt into ds. Okay. Then slight change of format you will take. ds by dt, it is what? ds by dt is the velocity. So you can write here m v dv. This is your small one. Okay. dw is equal to mv dv. Now you come here, since the force is acting there, so naturally it will change the velocity. So if force F changes velocity from u to v, then what will be the work done? यहाँ पे वेरिएबल हमारा v हो गया। पहला जो हम लिखे थे एफ डी एस, उसमें हमारा वेरिएबल s था। तो v के टर्म में हम लिमिट डालेंगे। तो यू राइट डाउन इफ फोर्स changes the velocity
of an object from U to V, then total work done will be. अब इसी को हम क्या करेंगे ना, इंटीग्रेट करेंगे। तो dw इंटीग्रेटेड, m कांस्टेंट है, बाहर कर ले, v dv, योर लिमिट इज u to v. Okay, now your answer is what? So for dw you can write w, for m, so m is okay, it is a constant. v dv, its integration will be v squared by 2, and your limit is from u to v. Now you place the values of limit here. So what you will get? You will get w is equal to m. The first, in place of v, you write on upper limit. The upper limit is v itself, v square by 2 minus, for v, you replace here by writing u square by 2. So we have inserted the limits. So what you are getting now? So this is what, half mv square minus half mu square. So you can write here, this is K final, yani final kinetic energy, minus K initial kinetic energy. So this way you can prove work energy theorem for a variable force. There are so many problems. If you want to solve, you solve it. Any problem if you are facing, you kindly inform me what the problem is. Now you come here, we will talk about potential energy. Potential energy, look at here, potential energy. The energy of an object due to its position, due to its shape, due to its configuration, these all things you can write down. Energy of an object, energy of an object due to its position, shape or configuration is called potential energy. Now the potential energy are actually so many types are there. So basically we will write here three types. Gravitational potential energy first. Gravitational potential energy. Potential energy, this is the first part. Second one is elastic potential energy. Elastic potential energy. If you stretch an elastic body, the potential energy is stored in it. So that potential energy is called elastic potential energy. C. Electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy. This is potential energy. If a two charged body of a system is situated, then there will be some potential energy. It is what we call electrostatic potential energy. So this potential energy in 11, in class 12 we will learn in detail. Elastic potential energy and gravitational potential energy will deal in class 11. Now you come here,
First, gravitational potential energy that everybody knows. So gravitational potential energy is GPE. Gravitational potential energy, GPE. Okay. Its symbol is U and it is equal to mgh. If an object is lying at height h from the surface of Earth, then it has potential energy and it is calculated as mgh. क्योंकि हम h हाइट तक अगर कोई ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा और जितना वर्क डन करना पड़ेगा द सेम विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सब क्लास 9 में भी आप अच्छा से पढ़े हो। तो पोटेंशियल एनर्जी इज योर mgh। नाउ इफ अगर मान लो हाइट 0 हो जाए तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगा 0 बिकॉज h इज 0। हम एक और फार्मूला पढ़ेंगे जो ग्रेविटेशन चैप्टर में है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू masses is equal to gm1 m2 by r, negative of gm1 m2 by r. So this we will deal in detail in that chapter, gravitation chapter. तो अभी आप इतना ही समझ के रखें कि h is height of object from the surface, so that you have to remember. Now you come here, the most important part of this chapter is your conservative force. Conservative force. Now look here, conservative force. Conservative force. Now इसके बहुत तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, तो हम जितना भी तरीका बुक में दिया हुआ विल डील हियर। आप हमें देखें कि कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन पहला तरीका क्या है कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले गए, दिस इज द पाथ 1। उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले गए, दिस इज योर पाथ 2। ओके, तो अगर नेचुरली ले जाओगे तो फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा ना। अगर वर्क डन WA to B फॉर पाथ 1 जितना भी है WA to B, यहीं पे ब्रैकेट में पाथ 1 इज इक्वल टू WA to B फॉर पाथ 2। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी फोर्स के द्वारा हम ए से बी ले गए, दिस पॉइंट इज ए, और एक ट्रैक है ये ए से बी और दूसरा ट्रैक है ये ए से बी। ठीक, तो दोनों पाथ में अगर वर्क डन बराबर हो तो जो फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो you write down a force is said to be conservative if the work done by it is independent of path. It only depends at initial and final point. You write down a force, ये पहला definition है, a force is conservative, a force is conservative, a force is conservative only if the work done by it is independent of path, उसमें एक लाइन और ऐड करो, it only depends
it only depends on initial and final point. And final point. And final point. Correct? Now you look here carefully. A force is conservative only if the work done by it is independent of path and it only depends on the initial and final position. ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो आप बोल सकते हो कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। उदाहरण एग्जाम्पल हम दे दें, पहला एग्जाम्पल आप लिख लें, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये तो हुआ पहला। अब आप देखो इसी केस में यहां पे क्या है ना, WAB path 1 is equal to WAB path 2. It is a, now you can write here WAB path 1 is equal to minus of WBA path 2. Why we have put here minus? Because see there, here the object is brought from A to B, here also A to B, but the direction we have changed here. We have taken B to A. Correct? Okay. Now you look here. अब इसको इधर कर लो। क्या हो जाएगा? WAB path 1 plus WBA path 2 is equal to 0। यानी क्या हुआ ना, ऑब्जेक्ट जो है वह ए पॉइंट से चला और फिर ये इधर आया, फिर वापस ए पॉइंट पे पहुंच गया। तो ये जो राउंड ट्रिप है या जो क्लोज्ड पाथ है, इसमें वर्क डन 0 हो गया। तो ऐसा फोर्स जिसके कारण किसी क्लोज्ड पाथ और राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 हो जाए, तो ऐसे फोर्स को भी हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। दिस इज सेकेंड डेफिनेशन। So second definition also you note, the force is conservative the force is conservative the force is conservative the force is conservative if work done by it is 0 for a closed path और राउंड ट्रिप भी आप बोल सकते हो। राउंड ट्रिप तो घूम घाम के वहीं पे पहुंच गए, राउंड ट्रिप। The force is conservative if work done by it is 0 for a closed path or a round trip। ठीक है, ये दूसरा डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन है जिसको हम लोग प्रूफ कर लें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अब कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको भी समझने की कोशिश करें आप। तो जो इसको अब ये जिस मान लो कि हमारा अर्थ है
और एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर ले गए, ठीक, ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गए, तो ऊपर ले गए तो आपने फोर्स लगाया होगा, तो फोर्स इज अप्लाइड हियर बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो वर्क इज डन, तो W इज इक्वल टू mgh, ये पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे दो फोर्स है, ये ऊपर ले जाने के दौरान मान लो ये h हाइट तक आप ले गए, यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, तो ध्यान से सोचें कि अगर मेरा क्वेश्चन बदल दे, दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट mgh, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट का मतलब वो आप भी हो सकते हो, आपने किया तो एक्सटर्नल एजेंट हो गए, कोई दोस्त ने किया तो भी एक्सटर्नल एजेंट हुआ, मैंने किया एक्सटर्नल एजेंट, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज mgh। अब इसी सिचुएशन में क्वेश्चन बदल दे, बोले क्या कि व्हाट इज वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी केस में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ए से बी, ओके, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, gravitational force, if you are carrying the object from A to B, ये इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट नहीं बोल रहे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री, तो आंसर इसका होगा WAB बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज माइनस mgh, minus because the force, gravitational force acts downward and the displacement of object takes place upward. So theta is 180 degree, cos 180 is minus 1. So WAB is minus mgh. Now, अब देखो फिर से ये ऑब्जेक्ट B से जा रहा है, WBA by the gravitational force again. तो WBA, अब देखो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है इधर, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ऑब्जेक्ट का, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये कितना हो जाएगा mgh, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोनों को ऐड कर दो, पूरे जर्नी का यानी पूरे राउंड ट्रिप का कितना वर्क डन हुआ, तो WAB प्लस WBA, सो व्हाट इज जीरो, तो आप लिख सकते हो WABA is 0 minus mgh plus mgh is 0. That is why gravitational force is a conservative force. Okay? अब ग्रेविटेशनल फोर्स को ध्यान में रखें और सोचें एक बात कि जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंको तो उसके काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, और सॉरी काइनेटिक एनर्जी घट रहा है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, बिकॉज हाइट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटता है, और पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी घटता है, ये ध्यान में रखना। तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं जो अभी हमने बताया था काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, तो हमें बताइए कि डेल्टा यू, इफ यू यूज वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर काइनेटिक इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो आपको पता है ना जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटता है, वी आर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स ओनली, तो ये जनरलाइज नहीं कर लीजिएगा, इफ कंजर्वेटिव फोर्स इज एप्लीकेबल देन ओनली यू कैन डू दिस वन। तो क्या होगा ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, लाइक दैट वन, एक दूसरे का। तो W बराबर होता है डेल्टा के, और ये बराबर होता है K फाइनल माइनस K इनिशियल। अब इसको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में अगर आप लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, क्यों, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, तो इसलिए निगेटिव हो गया।
माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, U इनिशियल माइनस U, इसको लिखो ऐसे, माइनस UF माइनस UI, and this can be written as U initial minus U final। ठीक है, तो वर्क डन कैन बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो, बट वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। ओके, अब जो हम सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहे हैं वो ध्यान से देखें कि जो वर्क डन क्या है। सपोज करो कि हमारा फोर्स वेरिएबल है, लेट द डिस्प्लेसमेंट is dx, that means very small displacement, dx मान लेते हैं, dx, correct, and force is variable, तो स्मॉल वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा W इज इक्वल टू F इंटू dx। ओके, डेल्टा W इज इक्वल टू F इंटू dx। अब आप देखें ये बराबर क्या होता है, ये बराबर क्या होगा, तो dW के जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ du, नहीं, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, du फॉर द स्मॉल चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो F बराबर क्या हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू माइनस du बाय dx। दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वह निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट का मतलब हुआ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। ग्रेडियंट पहले भी हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब हुआ किसी चीज का, किसी फिजिकल क्वांटिटी का ग्रेडियंट निकालना। इसका मतलब प्रेशर ग्रेडियंट भी होता है, चेंज ऑफ प्रेशर पर यूनिट लेंथ, change of potential per unit length, potential gradient, change of velocity per unit length is a velocity gradient, like temperature gradient also, change of temperature per unit length. So here the best definition of conservative force that now I am going to write, the, the conservative force is negative of potential energy gradient, that you write, du by dx को हम पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट बोलेंगे। राइट डाउन, कंजर्वेटिव फोर्स इज डिफाइंड एज, दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन, कंजर्वेटिव फोर्स is defined as negative of potential energy gradient, okay, this is the best definition, so you don't forget this definition because this is much important part of you. Now you write down, एक जो हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यू राइट डाउन, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है इट इज एप्लीकेबल फॉर कंजर्वेटिव फोर्स आल्सो, ठीक है। और जो फ्रिक्शन है दैट इज एब्सोल्युटली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब भी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो ये बात आपने श्योर करना है कि देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग एंड इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स ओनली, then only your principle of conservation of energy exists, otherwise you'll have some question mark there। See, तो हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखें।
यू राइट ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहले भी पढ़े हो, लेकिन अब थोड़ा डिटेल आपको पढ़ना है। यू राइट ऑन इफ कंडीशन पहले लिख देते, इफ ओनली conservative force acts, then total mechanical energy of a body remains constant. ओके अब आप देखो, तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्क आपने क्या लिखा था? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्क W is equal to delta of K, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिखें तो माइनस डेल्टा ऑफ U, चेंज ऑफ नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। दिस इज ऑल्सो वर्क डन, दिस इज ऑल्सो वर्क डन। ओके, तो ऐसा हम करें कि डेल्टा K प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा को आपने क्या करना, दो तरीके से आप लिख सकते हो। डेल्टा कॉमन ले लो, डेल्टा K प्लस U इज ऑल्सो 0। इट मीन्स व्हाट? क्या डेल्टा ऑफ K प्लस U इज 0, इसका मतलब क्या हुआ? K प्लस U 0 है या K प्लस U कांस्टेंट, या दोनों है? चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज 0, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि K प्लस U इज कांस्टेंट। तभी ना डेल्टा जो है, मतलब उसका जो चेंज है वो 0 है। जैसे मान लो 10 जूल पहले भी था, 10 जूल अभी भी है, करेक्ट? तो डेल्टा क्या हुआ उसका? टोटल एनर्जी जो है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी K प्लस U पहले 10 जूल था, अभी भी 10 जूल है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि K प्लस U जो है इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। So this is what we call principle of conservation of energy. Okay, so this way you can do this one. So आज के लिए इतना ही। कल में हम आपको स्प्रिंग फोर्स के बारे में बताएंगे। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स है। तो स्प्रिंग फोर्स और वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, जिसका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग जो नेक्स्ट आपको वीडियो अपलोड करेंगे दैट इज फॉर स्प्रिंग फोर्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लास।